Hello everyone, welcome to Saksham Digital Technology. I am here today welcoming you all to the first episode of our exciting journey into the world of data science. In this journey, we are going to uncover the step by step roadmap to become a successful data scientist. In Saksham Digital Technology, we are launching a playlist in which we are going to teach you how you can become a data scientist. In this series or in this playlist, we are sharing a roadmap which we are going to follow with you all guys. In this video, हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि किस किस तरीके की चीज़ें और कैसे हम इस प्रोसेस को कन्वर्ट करेंगे to become a successful data scientist, and what are the resources we are needing, setups, IDs, what we are going to use. These all things we are going to teach you in this video. This is basically an introduction video कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं. So let's just start it. Let me introduce you to the roadmap we will follow. It is a structure roadmap और जिसको हमने 7 phases में डिवाइड करा है. द फर्स्ट फेज इज मास्टरिंग पाइथन लैंग्वेज और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. द सेकंड स्टेप इज डाइविंग इनटू अ मैथमेटिक्स, बिकॉज अगर आप लोगों को एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है, तो यू हैव टू बी गुड इन प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, linear algebra, calculus, things like this. You have to be good in math. So you can calculate the data, you can analyze the data, you can get any kind of insight, useful insight from the data, which will be useful to boost your business. Okay. And the second step is we are going to explore machine learning. In this, it is categorized into supervised learning, unsupervised learning, like this. And the fourth step is we are going to unlock the power of deep learning with neural networks such as ANN, RNN, like this, etc. And the fifth step is building a stunning insight with data visualization tools we are going to use, such as Google Analytics, Power BI, etc. And the sixth part is we are going to teach you how to manage and analyze data with databases. And the seventh part is our last projects, which we are going to wrapping it all up with the real world projects. Okay, so let me introduce you to the whole structure which we are going to follow. First, our Python programming language. So in Python programming language, we are going to cover our basic Python, in which it includes variables, data types, operator, conditional statement, loop, and functions. Such kind of these things we actually are going to cover in our Python basics. Okay. In our intermediate Python programming, I'm going to teach you string, list, tuple, set, dictionary, and oops concept. And the advanced level, in which we are going to learn Python libraries such as NumPy, Panda, Matplotlib, Seaborn, like these. So just briefly I give introduction to all of these part. You can see the first step is our basic, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पाइथन कब डेवलप हुई, पाइथन से क्या क्या आप कर सकते हो, पाइथन आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा स्टेबल है क्या नहीं, कितना ज़्यादा स्टेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें. इसके बाद दूसरी चीज़ हमारी वेरिएबल्स आ जाते हैं. वेरिएबल्स में हम ये चीज़ें डिसाइड करेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन. पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल होते हैं, किस किस तरीके से आप पाइथन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो. द थर्ड स्टेप इज डेटा टाइप. कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे कि आपको पता है इंटीजर है, स्ट्रिंग, बुलियन, लाइक दीज एक्सेट्रा. इन तरीकों को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें. फोर्थ स्टेप इज अवर ऑपरेटर. ऑपरेटर्स हमारे क्या क्या होंगे हम वो पढ़ेंगे इसमें, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, these kind of operator which we are going to teach you in our operator section. इसके बाद में हमारा आ जाएगा कंट्रोल फ्लो. मैं पाइथन प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स को कंबाइन करके कंट्रोल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज टू वी कैन डिसाइड एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम. हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा बाय यूजिंग दीज टू. कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज इफ, हाउ टू यूज एल्स, हाउ टू यूज एलएफ,
एंड डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लूप्स में पाइथन के अंदर दो तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, डीप में पढ़ेंगे बिल्कुल। एंड द सेवन स्टेप इज और पाइथन फंक्शन, जिसमें कि हम पाइथन के अंदर फंक्शन बनाना सीखेंगे विद और प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। 8 इज अवर स्ट्रिंग। हम स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे फीचर पढ़ेंगे कि कौन कौन से फीचर आपको पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट कराती है, कि जब आप लिस्ट सॉरी मेरा मतलब जब आप स्ट्रिंग करें तो आपको कौन कौन से फीचर पाइथन लैंग्वेज इनबिल्ट सपोर्ट करती है। वो सारे वो सेम फीचर हम लिस्ट में भी पढ़ेंगे, सेट में भी पढ़ेंगे, टपल में भी पढ़ेंगे एंड डिक्शनरीज में भी पढ़ेंगे। एंड हाउ टू यूज दीज ऑल, स्टोरिंग डेटा टाइप्स कंटेनर, ये भी हम पढ़ेंगे। एंड आवर सिक्स स्टेप इज आवर 13 स्टेप इज ऊप्स, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पाइथन के अंदर, किस तरीके से हमारा क्लास बनता है, किस तरीके से हम हमारे ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म होता है, किस तरीके से इनकैप्सुलेशन होता है, किस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे हमारे ऊप्स में। एंड स्पेशल फंक्शन आर दीज थिंग्स, जो कि लैम्डा फंक्शन होते हैं, अनोनिमस फंक्शन। पाइथन के अंदर अनोनिमस फंक्शन भी होते हैं, एक फंक्शन होता है, एक अनोनिमस फंक्शन होता है। ये दो तरीके की चीज़ें होती है, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप पाइथन में फंक्शन बना सकते हो। और अगर आपको अनोनिमस फंक्शन बनाना, मतलब आपको बताना नहीं है कि आपने फंक्शन बनाया, तो आप वो भी कर सकते हो। स्पेशल फंक्शन वही अनोनिमस फंक्शन होते हैं जिनको हम डिफाइन नहीं करते, लेकिन वो फंक्शन की तरह काम करते हैं। और लैम्डा के साथ कुछ और भी चीज़ें यूज होती है, जैसे फिल्टर, रिड्यूस, मैप। तो हम वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज अवर एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसमें हम ट्राई एंड एक्सेप्ट, रेज, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हम हमारे कोड को एग्जीक्यूट कराएं विदाउट अकरिंग एनी काइंड ऑफ एरर। एंड अवर एडवांस लेवल, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांस वर्जन तक जाएंगे, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम numpy लाइब्रेरी, pandas, matplotlib और seaborn को यूज़ करेंगे। numpy इज बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन। ये एक पाइथन की एडवांस लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके आप न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो टू रीड एंड गेट द इनसाइट फ्रॉम द डेटा। पांडाज एक डेटा रीडिंग लाइब्रेरी है। इसमें आप किसी भी तरीके के फॉर्मेट के डेटा को रीड कर सकते हो, चाहे वो आपका XML फॉर्मेट हो, JSON फॉर्मेट हो, CSV फॉर्मेट हो, एक्सेल फॉर्मेट हो। Pandas is very advanced. It can allow you to read any kind of data. आप pandas का यूज कर पांडा और numpy का यूज कर करके आप डेटा को क्लीन कर सकते हो। आप डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में ला सकते हो जिसमें से कि आप डेटा को देख के ये बता पाओ कि हाँ, अब मैं इस डेटा का क्या यूज करने वाला हूँ। मैटप्लॉटलिब एंड सीमन बोथ आर द विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज। इनका यूज हम डेटा को विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली हम चार्ट्स, बार ग्राफ, स्कैटर चार्ट, इन तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो जब हमारा पाइथन में प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगा, जो हम इतना ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसका नाम था हमारा मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस। इसमें हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। So if you want to become a data scientist, if you want to become a data analyst, so you just have to learn probability and statistics. It will be very good for you. क्योंकि अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो तो आपको बस थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, आपको एक विजुअलाइजेशन टूल आना चाहिए, और आप पाइथन प्रोग्रामिंग में अच्छी कमांड रखते हो, तो यू कैन बी गो फॉर डेटा एनालिटिक्स। वो भी बहुत अच्छी फील्ड है आज के एरिना में, जिसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है वो, तो यू कैन गो फॉर इट। और इफ़ यू वांट टू डेवलप योर करियर इन फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा। कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा मोर इनटू जब आप मॉडल्स को ट्रेन करते हो, ट्यून करते हो, तो इनके लिए यूज होता है। ओके, सो हम मैथ्स में ये पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, स्टैट्स में हम बाइसन थ्योरम, टाइप 1 टाइप 2 एरर, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम कवर करेंगे स्टैट्स में। एंड प्रोबेबिलिटी में हम 5 नंबर समरी, जिसमें हम मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, these kind of thing. The next step is our machine learning. Okay, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया है कि मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला होगा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग वो होगी जिसमें हमें एक तरीके का स्ट्रक्चर डेटा पे काम करना होगा, एक तरीके का ऐसा डेटा जिसमें हमें पता है कि हम हमारे डेटा से चाहते क्या है। ओके, कि हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं हमारे डेटा में से, ये सारी चीज़ें हमें सुपरवाइज लर्निंग के अंदर बताई जाएगी।
अनसुपरवाइज लर्निंग एक तरीके का ऐसा डेटा जिसमें अनस्ट्रक्चर हो, मतलब वो उस डेटा को देख के आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप उस डेटा से क्या निकालोगे, क्या एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन वो डेटा हमको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम आगे चल के उस डेटा को यूज करके ऐसे डिसीजन ले पाए जो हमारे बिजनेस को बूस्ट करेगा। ठीक है। सेमी सुपरवाइज वो होता है जिसमें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों मिक्स होते हैं, वो तरीके का। एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग उस तरीके की चीज होती है जिसमें हमारा मॉडल हमारी ट्यूनिंग या फिर ट्रेनिंग से खुद सीखता जाता है, तो ये वो होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके के, दो तरीके के एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रिकर्जन बेस्ड एल्गोरिथम एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड एल्गोरिथम। तो रिकर्जन में जो एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे वो है लीनियर रिग्रेशन, ridge regression, lasso regression, and logistic regression. These four regression algorithm we are going to teach you: linear regression, ridge regression, lasso regression, and logistic regression. And classification based में हम आपको चार तरीके के एल्गोरिथम और इन पे मॉडल ट्रेन करके दिखाएंगे, और इनके हम प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। सिर्फ इनको बताएंगे नहीं, हम लाइव प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। इन पे हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आपको हम करेंगे थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट। ओके। डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम कहते हैं उनको, के नियरेस्ट, केएनएन एंड रैंडम फॉरेस्ट। इन सब अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे अच्छी वैल्यू आपको रैंडम फॉरेस्ट देता है। रैंडम फॉरेस्ट इज द मोस्ट यूजफुल एंड यूटिलाइज्ड एल्गोरिथम जिसमें हम हमारे मॉडल की सबसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सुपरवाइज लर्निंग का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास डेटा तब ऐसा होता है जिसको हम देख के बता पाए कि हम हमारे डेटा के साथ करने के वाले हैं। ओके। अब नेक्स्ट इज और अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट इज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, सेकंड इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिथम, एसोसिएट रूल लर्निंग, एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिथम। जिसके अंदर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के अंदर हम पढ़ेंगे के मीन्स, हायरार्किकल क्लस्टरिंग। डायमेंशनलिटी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारा पीसीए। एसोसिएट रूल लर्निंग के अंदर हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएट एल्गोरिथम्स। एंड एनोनिमी डिटेक्शन के अंदर वन क्लास एसवीएम एंड आइसोलेशन फॉरेस्ट। These are all the algorithms which we are going to teach you. जब इतना करने के बाद हम हमारे मशीन लर्निंग को अच्छे से सीख चुके होंगे, जिसमें आप एक तरीके के एआई मॉडल्स डेवलप करना सीख जाएंगे, जिसमें मतलब आप अपने मॉडल को डेटा देंगे और मॉडल आपको आउटकम प्रेडिक्ट करके देगा। ओके। ये सारी चीज़ें हम मशीन लर्निंग में सीखेंगे। एंड अवर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में एक दो तरीके में हमने इसको डिवाइड करा है, एक हमारा पाइथन लाइब्रेरी और एक हमारा टूल। जो तो पाइथन लाइब्रेरी वाला होगा, जितना भी विजुअलाइजेशन का काम होगा वो सारा का सारा हम हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में सीख चुके हैं, जिससे हम मैटप्लॉटलिब और C1 से करेंगे। लेकिन जो हमारा टूल वाला होगा, जैसे कि हमारे पावर बीआई, गूगल एनालिटिक्स, टैबलू, इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू टीच यू गूगल एनालिटिक्स एंड पावर बीआई। ओके। और टैबलू थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, आज के टाइम पे इतना यूज नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट का नया टूल है पावर बीआई और लेटेस्ट ट्रेंड में भी है, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखेंगे। ये रहे हमारे आपके विजुअलाइजेशन टूल जो हम सीखेंगे, पावर बीआई एंड गूगल एनालिटिक्स। टैबलू इज ऑल्सो अ गुड टूल, बट ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। ये इट इज़ वेरी इजी टू यूज एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू यूज। ओके। इसके बाद जब हम इतना कर लेंगे तो इट इज़ मच मोर कि आप एक अच्छे खासे डेवलपर हो गए हो। मशीन लर्निंग अगर आपने इतना कर लिया, लेकिन आपको फिर भी और आगे चलना है और आपको और अच्छा ऑटोमेशन सीखना है, तो आप डीप लर्निंग पे आ सकते हो। डीप लर्निंग जो होती है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है मशीन लर्निंग की, जो कि एक तरीके से ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करती है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे हमारा दिमाग है वो सोचने की शक्ति रखता है, लेकिन उसको जैसे हम पिंच करते हैं हमारे हैंड पे, तो वो पिंच पहले कुछ माइक्रो सेकंड का टाइम लेती है, और वो जो दर्द होता है हमें हमारे हाथ पे जहाँ पे हमने पिंच किया है, उस सिग्नल को पहले टिकल करती है हमारे ब्रेन में। इसके बाद ब्रेन हमें कमांड देता है कि हाँ मुझे वहाँ पे दर्द होना है। तो ये सारा चीज़ें जो चलता है ये हमारा न्यूरल नेटवर्क से चलता है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग कि हम सिस्टम को एक ऐसा दिमाग बना के दें जो खुद से सोचने की शक्ति डेवलप कर सके, वो सारी हम डीप लर्निंग में सीखेंगे। इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव। ये जो डीप लर्निंग होता है ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है एक तरीके के कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे, लाइक इमेजेस, वीडियोस और नेचुरल लैंग्वेजेस, जो कि बहुत ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। जैसे वीडियो पे काम करना है डेवलपमेंट, जैसे आपने देखा होगा आजकल कई सारे ऐसे एआई जनरेटर वीडियो आ गए कि आप फोटो डालो वो वीडियो बना के दे देते हैं, प्रॉम्प्ट डालो वीडियो बना के देते हैं। इस तरीके की चीज़ें ये सारे डीप लर्निंग मॉडल से ही होते हैं। तो इनके अंदर हम कौन कौन से मॉडल पढ़ेंगे,
तो वो मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क, सबसे पहले आपको न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो न्यूरल नेटवर्क इज वेरी सिंपल। इट इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ न्यूरॉन दैट प्रोसेस डेटा इन स्टेजेस। इसका क्या मतलब है? इसका अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इस तरीके से कि न्यूरल नेटवर्क जो होगा हमारा एक लेयर होगा जिसमें हम कई सारा पॉइंट्स बनाएंगे और वो प्रोसेस करेंगे आपके डेटा को कुछ कुछ स्टेजेस में। मतलब डेटा डायरेक्ट ट्रेवल नहीं करेगा, हम हम उस डेटा को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कुछ कुछ स्टेजेस में, कुछ कुछ पॉइंट्स में, और उन पॉइंट्स को, डेटा को हम हमारे जो भी हम मॉडल ट्रेन करेंगे उस पॉइंट्स में जहाँ पे हमने ब्रेक करा है टुकड़ों में हम उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि मॉडल को इजी पड़ेगा उसको एनालाइज करना और वो उसको बहुत जल्दी से प्रोसेस कर सकता है। इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम हमारी इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर। आप डीप लर्निंग का कोई भी मॉडल बनाएंगे, कोई भी नेटवर्क लेयर बनाएंगे, उसमें दो लेयर तो होगी मिनिमम। इट हैज अ टू लेयर, इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर। तीन होती है, हिडन लेयर भी होती है। हिडन लेयर के अंदर हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, कई सारे हमारे फंक्शंस काम करते हैं, कई सारी हमारी न्यूरल नेटवर्क लेयर्स काम करती हैं, वो हमारी सारी हिडन लेयर के अंदर होती है। बट अगर कोई भी आपसे पूछ है कि डीप लर्निंग के अंदर कितनी लेयर होती है, मिनिमम इट हैज टू बी अ टू लेयर, इनपुट एंड आउटपुट लेयर। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम। परसेप्ट्रॉन, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि रैलू हो गया हमारा, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, ये सारी कि उस पूरे एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो न्यूरल नेटवर्क इज अवर द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे हम बेसिकली एक ऐसे स्ट्रक्चर और ऐसा न्यूरन बनाना सीखेंगे जो कि हमारे सिस्टम या फिर हमारे मॉडल का एक ऐसा ब्रेन होगा जो एक्चुअल में डेटा के साथ सीखता भी जाएगा और उसके रिजल्ट इंप्रूव भी होते जाएंगे। मशीन लर्निंग क्या करता है कि उसको हम सिखा देते हैं लेकिन वो इंप्रूव नहीं करता, वो उसी रिजल्ट के बेसिस पे आउटकम प्रेडिक्ट करके देता है। लेकिन डीप लर्निंग के रिजल्ट मोर एक्यूरेट होते हैं, मोर बेटर होते हैं, क्योंकि वो सीखता जाता है। जितना उसको आप डेटा देते हो वो उतना सीखता जाता है। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को आप जितना डेटा दोगे वो उससे रिपीट नहीं करता उसको, वो उससे सीख के और अच्छा देता है आपको। आप और अगर आपको और अच्छा चाहिए तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि भाई कि इससे सीखो और इससे और अच्छा करो, तो वो करता है इस चीज को। तो ये सारी चीजें न्यूरल नेटवर्क से होती हैं। ओके, जो दूसरा लेयर है, दूसरा न्यूरल नेटवर्क है हमारा, वो है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अब ये लेयर, ये नेटवर्क जो है वो एक्चुअल में इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हमारा इमेज, ग्रे इमेज स्केलिंग के लिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, और मतलब कुछ ऐसा जहाँ पे हमें डिटेक्ट करना हो, जिसमें आपको ये सारा काम करना हो। इसके अंदर एक और मॉड्यूल यूज होता है सीवी का, कंप्यूटर विजन जिसे हम कहते हैं, वो भी इन्हीं मॉडलों को यूज करता है। जैसे योलो एक मॉडल है कंप्यूटर विजन का जो कि CNN मॉडल को यूज करता है। इट इज स्पेशलाइज फॉर इमेज रिकग्नाइजेशन एंड कंप्यूटर विजन टास्क। ओके, सिंपल है। मतलब इमेज और जो भी वीडियो का टास्क रहेगा उसको अगर आपको यूज करना है तो आपको कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। ये पहले से बने बनाए हैं, मतलब बने बनाए इन द सेंस कि ये डिफाइन है कि अगर आपको इमेज और वीडियो जैसे टास्क पे काम करना है तो आपको CNN यूज करना है, इस तरीके से। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर हम सीक्वेंस मॉडलिंग पढ़ेंगे, लैंग्वेज मॉडलिंग पढ़ेंगे, मशीन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एंड टाइम सीरीज प्रेडिक्शन पढ़ेंगे। अब एक्चुअली व्हाट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क? अब ये एक्चुअल में एक इस तरीके का न्यूरल नेटवर्क होता है जो सीक्वेंशियल डेटा को हैंडल करता है एंड टेक्सुअल डेटा को। जैसे कि आपने सुने होंगे मॉडल्स, सेंटिमेंटल एनालिसिस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉडल, मतलब जो हम करते हैं, जैसे हमारा गूगल ट्रांसलेशन है। अब वो भी एक मॉडल है, जैसे आपने हिंदी में कुछ डाला और आपने उससे स्पेन या फिर पोर्चुगीज में पूछा तो वो दे देगा। तो ये सारी चीज़ें ट्रेन हुआ है ये एक मॉडल की तरह, तो उसमें ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ही यूज हुआ है। और लास्ट इज अवर ऑटो इनकोडर नेटवर्क, जिसमें हम ऑटो इनकोडर, डिकोडर आर्किटेक्चर, जनरेटिव मॉडल्स, बेसिकली इट्स एनोमली डिटेक्शन जो हमारा यहाँ पे था, ये वाला एल्गोरिथम है वो, तो उसको हम काम करते हैं। और लास्टली हम एक डेटाबेस बनाना सिखाएंगे आपको, जिसके अंदर हम दो तरीके के डेटाबेस सिखाएंगे, एक RDBMS सिखाएंगे और NoSQL डेटाबेस सिखाएंगे। जिसके अंदर हम MySQL सिखाएंगे, PostgreSQL सिखाएंगे और NoSQL में हम MongoDB सिखाएंगे। ओके, इसके बाद ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था अगर आपको डेटा एनालिटिक्स करना है या फिर ऐसा कुछ करना है तो फिर हम ये कोर्स उसको भी कवर करेगा। इट इज़ अ कंप्लीट मास्टर कोर्स जिसमें आप एक डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी पढ़ सकते हो और कंप्लीट डेटा साइंस के बारे में पढ़ सकते हो। तो एक्सेल के अंदर जो फीचर्स हम पढ़ेंगे या फिर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो कुछ इस तरीके के हैं: इंडेक्स मैच फंक्शन, एक्स लुकअप, इफ फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, डेटा वैलिडेशन, एडवांस फिल्टर, पाइवट टेबल,
ये सारे और सारे एग्रीगेशन फंक्शन जो एक्सेल में होते हैं. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डन सम प्रोजेक्ट्स. ओके, that is our the roadmap which we are going to follow to teach you guys how we are going to learn our data science. Okay, तो फर्स्टली अब हम चालू करते हैं कि हम हमारा डेटा साइंस की जर्नी कैसे स्टार्ट करेंगे. ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो.